I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। आज मैं आपको डिस्ट्रिक्ट हरिपुर लेकर जा रहा हूं, जहां एक इंतहाई खूबसूरत आबशार हमारी मुंतज़िर है। इस आबशार का नाम है जब फॉल, जो जब वैली में पहाड़ों के दरमियान पत्थरों से टकराती सदियों से बह रही है। अभी मैं इस्लामाबाद से निकला हूं और जीटी रोड पर टेक्सला की तरफ सफ़र कर रहा हूं। इस आबशार की तरफ जाते हुए रास्ते में आपको और भी बहुत सी जगहों को देखने का मौका मिलेगा, जो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा। इस वक्त हम बाएं जानिब B17 के करीब से गुजर रहे हैं। जिस जीटी रोड पर इस वक्त हम सफ़र कर रहे हैं, ये माजी के अजीम हुक्मरान शेर शाह सूरी की आला इंतज़ामी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है, जिससे आज तक लोग इस्तिफादा कर रहे हैं। सामने पहाड़ पर जो मीनार नजर आ रहा है, इसको निकलसन ऑबलिस्क कहा जाता है। 1868 में ब्रिगेडियर जनरल निकलसन की याद में तामीर किया जाने वाला ये मीनार दुनिया के बुलंद तरीन मीनारों में शुमार होता है। इसकी तामीर का बुनियादी मकसद जनरल निकलसन की पहली एंग्लो सिख वॉर में खिदमात को खराज तहसीन पेश करना था। अब हम मेन जीटी रोड को छोड़कर टेक्सला म्यूजियम वाली रोड पर मुड़ रहे हैं।
इस मोड़ को मुड़ते ही रेलवे लाइन क्रॉस करने के बाद अब हम भीड़मुंड पहुंच चुके हैं, जो 6ठी से दूसरी सदी कबीले मसीह का एक कदीम शहर था। इस जंगले के पीछे इसी शहर के आसार दरियाफ्त हुए हैं। यही वो जगह थी जहां मुकामी राजा अम्बी ने 326 कबले मसीह में सिकंदर आजम का इस्तकबाल किया था। इसके साथ ही सामने टेक्सला म्यूजियम का गेट भी नजर आ रहा है, जहां इस इलाके से मिलने वाली नवादरात को रखा गया है। साथ ही 1 किलोमीटर बाद तमरा नाले के करीब सिरकप के आसार कदीमा हैं, जो भीड़मुंड के जवाल के बाद आबाद हुआ। सामने यूईटी की दीवार और गेट है। माजी की तरह आज भी ये खित्ता उलूम व फनून का मरकज है। टेक्सला खानपुर रोड पर दोनों जानिब जा बजा आसार कदीमा बिखरे हुए हैं। तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये इलाका किसी जन्नत से कम नहीं। तो ले व्यूअर्स, अब हम खानपुर डैम पहुंच चुके हैं, जो इस्लामाबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रोड किनारे से ही इसकी झील का नजारा बेहद दिलफरेब है। इस डैम को दरिया हरो पर तामीर किया गया है, जिसका आगाज डोंगा गली के करीब से होता है। इसकी तामीर 1984 में की गई, जबकि डैम की कुल बुलंदी 167 फीट के करीब है। खानपुर डैम क्रॉस करने के बाद अब हम हरिपुर रोड पर सफर करते हुए सूरज गली की सरसब्ज पहाड़ियों से गुजर रहे हैं। तो ले जी, हम बहादुर चौक पहुंच गए हैं, जहां से हमने जब फॉल की तरफ मुड़ना है। यहाँ मंग गेम रिजर्व भी है, जहां बहुत सी किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। बहादुर चौक से जब तक ये सड़क इंतहाई दिलफरेब मनाजिर पर मुश्तमिल है। सड़क किनारे ये छोटा सा तालाब एक शीशे का मंजर पेश करता है। इसके किनारे ये बरगद का कदीम दरख्त न जाने कितने जमानों के उतार चढ़ाव का गवाह रहा है। पूरा रास्ता इंतहाई शानदार है। सड़क तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी हालत में है। ऐसी सड़क पर ड्राइव करने का एक अलग ही मजा है।
अब हमने सोकाकस के पुल को क्रॉस किया है, इसके बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है। पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क, नीला आसमान, सरसब्ज ढलवाने देखकर अजीब कैफियत तारी हो रही है। तो चलें जब रोड को तायराना निगाहों से देखते हैं। ये जब गांव से कुछ पहले एक पास है जहां पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस वक्त हम जब गांव में पहुंच चुके हैं, वाटरफॉल के करीब हैं। बस अब आपको दिखाते हैं बाकी रास्ता आगे कहाँ से जाते हैं। जब गांव पहुंचकर पक्की सड़क को छोड़कर दाएं जानिब कच्चे रास्ते पर उतरना है। रास्ते में ये सामने आपको करेले का बाग नजर आएगा, जहां से आपने फिर दाएं मुड़ना है। इसके बाद खेतों के दरमियान ये छोटी सी सड़क सीधा जब फॉल के करीब तक जाएगी, जिस पर हम सफर कर रहे हैं। जब नाला इसी गांव से होकर गुजरता है और फिर पहाड़ों के बीच पहुंचकर आबशार की शक्ल इख्तियार कर लेता है।
ये सामने नजर आने वाले गैप में जब आबशार गिर रही है। तो ये वो जगह थी जो चौक है जहाँ से आपने अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल पार्क करना है। ये इकबाल चौक कहलाता है। ये इकबाल साहब की दुकान है यहाँ पर, छोटी सी गांव की। यहाँ पर आपको जो है वो बोतलें, चिप्स और इसी तरह दाल सेमियाँ, बिस्किट वगैरह मिल सकते हैं। तो जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इनसे चीज़ें लेकर आगे जाएँ। छोटी सी दुकान है, इनको सपोर्ट भी करें। और अगर आपको रास्ता मालूम नहीं है तो आप इकबाल साहब को भी साथ ले जा सकते हैं। इनको पैसे दे देंगे, आपको गाइड करेंगे। और ये बता रहे हैं कि आगे जंगल में 6-7 आबशार हैं। जी चाचा जी, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। इससे नीचे जी पहले नंबर पे आता है एक आबशार, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, पंजवा, छठवां, छठा आता है सर। अच्छा अच्छा। इधर से फिर खत्म हो जाता है, फिर तना सारा जंगल। तो कितना टाइम लग जाता है आखिरी तक, आखिरी आबशार? आधा घंटा सारे दिन तकरीबन लगेगा। अच्छा, चलो इंशाल्लाह फिर आवांगे तो आपको नाल लेके जाओगे। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। चलें आगे हम चलते हैं। बहते हुए पानी की कुदरती मौसीकी रूह पर अजीब सहर तारी कर देती है। कौन सा लाए हैं? तो ये रास्ता अब जो है वो पक्का कर दिया इन्होंने। पहले तो ये रास्ता बहुत कच्चा था और बहुत ही ख़राब हालत में था, लेकिन अब ये काफ़ी बेहतर है। गाड़ी और बाइक अब काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। हम तो अपनी बाइक पीछे ही खड़ी करके आए। पूरे रास्ते में आप परिंदों की खूबसूरत आवाज़ों से भी लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी, ठीक हो? राह दौरे इश्क में रोता है क्या, राह दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चलें जब की तरफ हम जा रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और बस अब करीब ही है वाटरफॉल। ये बिल्कुल आपको एक वर्टिकल रॉक फेस भी नज़र आ रहा है सामने। तो आए आपको लेकर चलते हैं। सामने गांव के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं।
गो। यहाँ पर रास्ता थोड़ा स्लिपरी है, इसलिए एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने से अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। आबशार तक उतरने से पहले रास्ता बहुत खतरनाक और छोटा है, इसलिए एहतियात जरूरी है, खासकर अगर आपके साथ बच्चे और ख्वातीन हैं तो। जरा सी गलती भी आपको कई सौ फुट नीचे पहुंचा सकती है। दो हाथों की चौड़ाई के बराबर ये रास्ता एक अमूदी चट्टानी दीवार के साथ साथ चलता है। तो ले फाइनली हम आबशार के करीब पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पार्किंग से आबशार तक तकरीबन 45 मिनट का पैदल रास्ता है। इस फॉल का पूल काफी गहरा है, इसलिए जो लोग तैरना नहीं जानते वो इससे दूर ही रहें।
इस वक्त हम जब फॉल पर बैठे हुए हैं। इस तरह तन्हाई में आबशार के किनारे बैठकर इसके पानी की आवाज़ को सुनना, ये कुदरती एक मौसीकी है जिसको जब आप सुनते हैं बेख्तियार आपकी ज़ुबान से एक ही कलमा निकलता है, फतबारिक अल्लाह व अहसनुल खालिकीन। कि अल्लाह ताला ने ये कितनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन जगहों को हम सेव करें, यहाँ पर गंद न फैलाएँ और यहाँ पर आएँ, इस जगह का, इस माहौल का ख्याल रखें और ताकि आने वाले जो लोग हैं वो भी इन जगहों को इंजॉय कर सकें। जब फॉल दरअसल सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स हैं, यानी तकरीबन 6 से 7 छोटी बड़ी आबशारें यहाँ पर मौजूद हैं। आबशारें बनाता हुआ ये पानी बिलाखिर खानपुर डैम से कुछ पहले दरे हरों में जा गिरता है। ड्रोन से इन आबशारों का एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिखाई देता है। आसपास जंगल में वाइल्ड लाइफ की बहुत बहुतात है। बंदर, लेपर्ड और भेड़िया यहाँ के बड़े जंगली जानवरों में शामिल हैं, जबकि लोमड़ियाँ, गीदड़, सांप, न्योले, सेह और अनवाओ इकसाम के परिंदे भी बकसरत पाए जाते हैं। नए आने वालों के लिए एक दफ़ा फिर बता दूं कि यहाँ आने के लिए सबसे आसान रास्ता इस्लामाबाद से टेक्सला, खानपुर, बहादुर चौक से होता हुआ जब गांव तक आता है, जिसके करीब ही ये खूबसूरत आबशार वाक़या है।
खूबसूरत यादों को समेट कर वापसी के सफर पर गामजन हुए। खत्म होने को है सफर शायद, खत्म होने को है सफर शायद, फिर मिलेंगे कभी मगर शायद। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाक।
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अरशद इकबाल वानी और आज हम वानीपीडिया पाकिस्तान में आपको एक ऐसी वाटरफॉल दिखाने वाले हैं जो नहायत खूबसूरत, बहुत बड़ी, अनएक्सप्लोर्ड और इजीली एक्सेसिबल है। इस वाटरफॉल का पूल एक कुएं की तरह गहरा है और तकरीबन सारा साल इसमें पानी वाफिर मिकदार में मौजूद रहता है। जी हाँ, इस वाटरफॉल का नाम रेजी वाटरफॉल है, जो रेजी स्ट्रीम या नाले से बनी है। रेजी नाला दरिया पुंछ में जाकर गिरता है। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाटरफॉल के करीब ही वाक़या हिल्ला गांव के पीछे मौजूद पहाड़ों के स्लोप से ही दरिया पुंछ का आगाज़ होता है, जो कि मुख्तलिफ चश्मों से निकलता हुआ और फिर हिलना से होता हुआ रेजी, खुर्शीदाबाद, फॉरवर्ड कहूटा, तितरी नोट, अब्बासपुर, मंढोल, तत्तापानी, कोटली, गुलपुर, रुडियाल से होता हुआ मंगला डैम से कुछ पहले दरिया जहलम में जाकर गिरता है। इस वाटरफॉल की हाइट तकरीबन 300 फीट के करीब है और इस्लामाबाद से ये वाटरफॉल सिर्फ 230 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। इस वाटरफॉल पर जाने के लिए इस्लामाबाद से फॉरवर्ड कहूटा तक सड़क की हालत काफ़ी बेहतर है, लेकिन उससे आगे खुर्शीदाबाद और रेजी तक सड़क ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं है। क्योंकि ये वाटरफॉल LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है, इसलिए आप जब भी यहाँ का विज़िट करने जाएं तो अपने साथ अपना ID कार्ड ज़रूर साथ रखें, क्योंकि रास्ते में मौजूद मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर आपका ID कार्ड ज़रूर चेक किया जाएगा। ये वाटरफॉल रोड के बिल्कुल किनारे पर है, लेकिन यहाँ बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह मौजूद नहीं है और करीब ही कोई बड़ा बाज़ार भी मौजूद नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप खाने पीने की अशिया अपने साथ लेकर जाएं। यहाँ विज़िट करने वाले तमाम टूरिस्ट हजरात से मेरी गुजारिश है कि अपने हमरा लाई हुई खाने पीने की चीज़ों के रैपर्स, जूस के डब्बे, पैकेट्स, बॉटल्स, शॉपर्स वगैरह यहाँ फेंकने से गुरेज करें, ताकि इन खूबसूरत जगहों को माहौलियाती आलूगी से बचाया जा सके। इस वाटरफॉल के पूल में गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूल के किनारे रहकर ही इंजॉय करें और पूल में जाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इसका पूल एक कुएं की तरह गहरा है, जिसमें नहाना आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए गाइडेंस के लिए आपको इस वीडियो के आखिर में दी गई गूगल लोकेशन से आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं और बआसानी इसको तलाश कर सकते हैं। क्योंकि इस वाटरफॉल का फ़ासला इस्लामाबाद से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने टूर्स को 2 से 3 दिन का रखें और इस वाटरफॉल के साथ साथ आप रास्ते में और भी दूसरी बहुत सी जगहों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। मसलन इस्लामाबाद से लहतराड़ की तरफ जाते हुए आप रास्ते में नीलासान वाटरफॉल देख सकते हैं। कोटली सतिया से 10 किलोमीटर पहले आप 1928 का बना हुआ खूबसूरत दनोई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि जंगल में घिरा हुआ है, उसका भी विज़िट कर सकते हैं। रास्ते में बाग से आगे लसदन्ना और महमूद गली के पुरफिजा हिल स्टेशन पे क़याम भी कर सकते हैं। लसदन्ना में आज़ाद जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट का एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है, जिसकी बुलंदी सतह समुंदर से 8600 फुट के करीब है और यहाँ पर आपका एक रात का क़याम आपके लिए नाकाबिले फरामोश साबित होगा। आपके लिए एक और सरप्राइजिंग बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि रेजी फॉल से आगे हिला गांव के पीछे LOC के पार जो बुलंद पहाड़ आपको दिखाई देंगे, वो दरअसल मकबूजा कश्मीर का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन गुलमर्ग है, जहां पे बहुत सारी इंडियन फिल्मों की अक्सबंदी भी हो चुकी है।
तो इन खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा आप हिल्ला गांव से बआसानी कर सकते हैं। इस खूबसूरत वाटरफॉल पर पहुंचने के बाद आपको एक और बहुत ही खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा, और वो ये कि इस वाटरफॉल के पानी गिरने की वजह से जो पानी के कतरे हवा में मुअल्लिक रहते हैं, उनमें से जब सूरज की किरणें गुजरती हैं तो रिफ्रैक्शन की वजह से वो कतरे एक प्रिज्म का काम करते हैं और मुस्तकिल तौर के ऊपर इस वाटरफॉल के किनारे एक कौसे कज़ा यानी रेनबो बनी रहती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश करती है। जब आप इस मंज़र को देखेंगे तो आप दम बखुद रह जाएंगे और बेख्तियार अल्लाह की कारगरी और सनाई के मोतरफ़ हो जाएंगे और अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे। सुरेजी वाटरफॉल की तरफ जाते हुए रास्ते में जगह आपको मिलेंगे, और इन्हीं में से एक खूबसूरत छोटी आबशार खुर्शीदाबाद के करीब वाक़या है, जो खुर्शीदाबाद वाटरफॉल के नाम से मशहूर है। ये दरअसल एक कास्केड है जिसका पानी पत्थरों और चट्टानों के ऊपर से फिसलता हुआ रोड के ऊपर आकर गिरता है। इन्हीं रास्तों से गुजरकर आप सुरेजी वाटरफॉल की तरफ जाएंगे, और रास्ते में सड़क को काटता हुआ ये पानी बाज़ औक़ात आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बाइस बनता है, लिहाजा इनको क्रॉस करते हुए एहतियात की ज़रूरत है। चलें हम आपको सुरेजी वाटरफॉल के रास्ते के मुताबिक गाइड करते हैं, और इस मकसद के लिए हमने आपके लिए गूगल अर्थ पर एक मूवी बनाई है जिसमें इस रास्ते के मुताबिक गाइड किया गया है। आपने अपना सफ़र रावल डैम इंटरचेंज इस्लामाबाद से शुरू करना है, और इसके बाद आप करामड़ी चौक की तरफ पहुँचेंगे। करामड़ी चौक की तरफ आप खन्ना पुल की साइड से भी आ सकते हैं। करामड़ी चौक के बाद आपने अपना सफ़र
इसी सड़क के ऊपर जारी रखना है और आपकी अगली मंजिल नेलोर होगी। नेलोर के बाद मज़ीद इसी सड़क पर आप अपना सफ़र जारी रखेंगे और फिर आप अपना सफ़र जारी रखते हुए चिरा चौक पहुँचेंगे। चिरा चौक से आगे दरियाए सवांग मेन सड़क को काटता है, जहाँ पर एक पुल मौजूद है दरिया के ऊपर। इस पुल को क्रॉस करने के बाद आप अपना सफ़र लेतराड़ की तरफ जारी रखेंगे और यहाँ से आपका पहाड़ी सफ़र शुरू हो जाएगा। रास्ते में आपको नीला सांद वाटरफॉल भी मिलेगी, जहाँ पर आप कुछ देर रुककर इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद मेन शहर जो आपका आएगा वो लेतराड़ है और लेतराड़ के कस्बे को क्रॉस करने के बाद आप कोटली सतिया के खूबसूरत पहाड़ी और पुरफिजा मुकाम पर पहुँचेंगे। कोटली सतिया के बाद ब्रिज के ऊपर ट्रैवल करते हुए आपकी अगली मंजिल मलोट सतिया है। मलोट सतिया से फिर आप उतराई की तरफ सफ़र शुरू करते हुए दरियाए झेलम तक पहुंचेंगे, जहां पर डलकोट ब्रिज मौजूद है और ये पुल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ ही से फिर आपका चढ़ाई की तरफ सफ़र शुरू होगा और आप अपनी अगली मंजिल टाई पहुंचेंगे, जो कि आज़ाद कश्मीर में वाक़या है। टाई के बाद इसी सड़क पर सफ़र जारी रखते हुए आपकी अगली मंजिल अर्जा है और इस मकसद के लिए आप अर्जा पुल को क्रॉस करेंगे, जो कि दरियाए महल के ऊपर बना हुआ है। और इस पुल को क्रॉस करने के बाद आप अर्जा टाउन में पहुंचेंगे, जहां से एक रास्ता धीरकोट की तरफ से भी आता है। अर्जा के बाद आप दरियाए महल के साथ साथ अपना सफ़र जारी रखते हुए मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव देहातों से गुजरेंगे, जिसमें मंग बजरी और हाड़ी गहल ज़्यादा अहम है। हाड़ी गहल के बाद इसी सड़क पर दरियाए महल के साथ साथ आपका सफ़र जारी रहेगा और आप बाग शहर पहुंच जाएंगे। बाग आज़ाद कश्मीर का एक बहुत बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 1.5-2 लाख से भी ज़्यादा है और यहाँ से ही एक सड़क सुदन गली को जाती है, जहाँ से आप गंगा चोटी का नज़ारा भी कर सकते हैं। बाग शहर के बाद आपने अपना सफ़र लखनऊ की तरफ जारी रखना है और आप छत्तर के छोटे से गांव से गुजरेंगे, जिसके बाद आपकी अगली मंजिल रेड़ा और फिर रेड़ा के बाद इसी सड़क के ऊपर अगला जो गांव आपके रास्ते में आएगा वो ढुली है। ढुली के बाद मज़ीद आप अपना सफ़र जो है वो इसी दरिया के साथ सड़क पर जारी रखेंगे और लोहार बेला से कुछ पहले आप एक पुल को क्रॉस करने के बाद चढ़ाई की तरफ अपना सफ़र जारी रखेंगे और आपकी अगली मंजिल रसदना का खूबसूरत और पुरफिजा पहाड़ी मुकाम है, जहां पर एक खूबसूरत रेस्ट हाउस भी मौजूद है, जहां रात को आप क़याम भी कर सकते हैं। ये आज़ाद कश्मीर टूरिज़्म डिपार्टमेंट वालों का रेस्ट हाउस है। यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे। एक लेफ़्ट को रास्ता जो है वो हाजी पीर पास की तरफ चला जाएगा, जबकि राइट की तरफ जाने वाला रास्ता पहाड़ों के ऊपर से होता हुआ रिज को फॉलो करते हुए बिल्कुल महमूद गली तक पहुँचेगा। महमूद गली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, जिसके स्लोप्स जंगलात से ढके हुए हैं। यहाँ से 2 सड़कें हो जाएंगी। राइट वाला रास्ता अब्बासपुर की तरफ चला जाएगा, जबकि लेफ़्ट की तरफ जाने वाली सड़क उतराई की तरफ होती हुई आपकी अगली मंजिल गुगदार तक पहुँचेगी, जो कि पलंगी नाले के किनारे पर वाक़या है। गुगदार के बाद आपने पलंगी नाले के साथ साथ अपना सफ़र जारी रखना है और इस सफ़र को जारी रखते हुए आपकी अगली मंजिल पलंगी नाले के ऊपर बना हुआ सीमेंट का पुल है, जो पलंगी ब्रिज कहलाता है और जिसको क्रॉस करने के बाद आप पलंगी के कस्बे तक पहुंच जाएंगे। पलंगी के बाद आपका सफ़र इसी सड़क पर आगे की तरफ जारी रहेगा और आप पलंगी नाले के साथ साथ टुंगारी तक पहुंचेंगे, जहां पर पलंगी नाला दरिया पुंछ में जाकर गिर जाता है। टुंगारी के बाद आप दरिया पुंछ के साथ साथ अपना सफ़र जारी रखते हुए फॉरवर्ड कहुटा के कस्बे तक पहुंचेंगे, जो कि एक बहुत ही मशहूर टाउन है आज़ाद कश्मीर का। और फॉरवर्ड कहुटा के बाद आप कालामूला वाली सड़क की तरफ जाएंगे और वहाँ पर पुल क्रॉस करने के बाद दूसरा पुल आएगा, जिसको चांजल ब्रिज कहा जाता है। और इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद
आप खुर्शीदाबाद की तरफ अपना रुख कर लेंगे और खुर्शीदाबाद वाली सड़क के ऊपर आप अपना सफ़र जारी रखेंगे। खुर्शीदाबाद की सड़क बल खाती हुई पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हुई मुख्तलिफ टेरेस फील्ड में से गुजरती हुई मिलाकर आपको खुर्शीदाबाद के कस्बे तक पहुंचा देगी, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा टाउन है। और यहाँ पर आपको टेरेस फील्ड हैं वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देते हैं। खुर्शीदाबाद के बाद आपकी असल मंजिल यानी कि रेजी वाटरफॉल यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी ख़राब है, टूटा फूटा है और कच्चा है रोड, तो यहाँ पर आपको बहुत एहतियात से ड्राइविंग की ज़रूरत है। और इसके बाद आप अपनी मंजिल रेजी तक पहुँच जाएंगे और ये खूबसूरत वाटरफॉल जो है वो देख सकेंगे। रेजी के बाद 5 किलोमीटर के फासले पर हिला गाँव वाक़ है। अगर आप रेजी आते हैं तो इस गाँव को देखना ना भूलिए, क्योंकि इसके पीछे पीर पंजाल रेंज वाक़ है और ये जो पीछे पहाड़ आपको नज़र आ रहा है ये दरअसल मकबूजा कश्मीर में एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जिसका नाम गुलमर्ग है, वो इस हिला गांव के बिल्कुल पीछे वाक़ है। और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये इंडियन रोड्स आपको नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत लेक्स हैं। इस पहाड़ की बुलंदी तकरीबन 13,500-14,000 फुट के करीब है और इस पहाड़ के बिल्कुल पीछे वादी कश्मीर या मकबूजा वादी है, जिसमें श्रीनगर, मनसबल और बांडीपुरा आप बआसानी देख सकते हैं। और ये आपको सामने इसमें मनसबल लेक नज़र आ रही है और इसके साथ ही आपको ये डल लेक नज़र आ रही है जो कि श्रीनगर में वाक़ है। तो इस तरह आप इस इलाके में अपना सफ़र जारी रखते हुए रेजी फॉल को देखने के बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आइंदा किसी और खूबसूरत और अनएक्सप्लोर्ड जगह के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल की सैर करवाते हैं जिसका नाम है तिल्ली या ग्राटा पार वाटरफॉल। इसका नाम असल में तो तिल्ली है, लेकिन चूँकि ग्राटा पार गांव के करीब वाक़ है आज़ाद कश्मीर में, इसलिए इसको अमूमन ग्राटा पार वाटरफॉल भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और इस्लामाबाद से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या इस खूबसूरत आबशार तक आप हर किस्म की कन्वेंस में पहुंच सकते हैं। बाइक पर जाना चाहते हैं, गाड़ी पर जाना चाहते हैं, हर तरह से आप यहां पर जो है वो इजीली आप यहां पर अप्रोच कर सकते हैं। बेस्ट सीज़न यहाँ पर जाने का जो है वो आपका यकीनन मार्च और अप्रैल के महीने, और उसके बाद ऑब्वियसली जो मानसून सीज़न होता है उसमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन इन मंथ्स के अलावा यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी कम होता है। और अगर आप इन मंथ्स के अलावा जाएंगे तो आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत इस वाटरफॉल का फ्लो है, तो आप इसका म्यूज़िक जो कुदरती म्यूज़िक है उसको खुद सुनिए और इन्जॉय कीजिए। चलिए व्यूअर्स, हम आपको इस वाटरफॉल के मैप के बारे में जो है कुछ बताते हैं। ये इसका आपको मैप सामने नज़र आ रहा है जिसमें तराड़खल से इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया है। और अब हम आपको गूगल अर्थ के जो है वो इमेज और व्यूज़ की तरफ लेकर चलते हैं, जिसमें हमने एक मूवी बनाई है आपके लिए, जिसके ज़रिए से आपको बआसानी समझ आ जाएगी कि इस वाटरफॉल तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो आप अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो 0 पॉइंट फैज़ाब से इस्लामाबाद से शुरू करेंगे और फिर
0 पॉइंट से 4 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप हाईवे के ऊपर जो है नेक्स्ट स्टॉप पर जहाँ पर पहुँचेंगे वो जगह है फैज़ाबाद फ्लाईओवर को जो ही आप क्रॉस करेंगे तो उसको क्रॉस करने के बाद तकरीबन 25 किलोमीटर का फासला आपने स्ट्रेट रोड पर और तय करना है और आप सिहाला मोड़ के ऊपर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये वही सिहाला मोड़ है जहाँ से सीधी सड़क जो है वो जीटी रोड लाहौर की तरफ जाती है और आप अपने रुख के जो है वो जब इस्लामाबाद से आएंगे तो बाएं तरफ मुड़ेंगे और फिर आप अपना सफ़र कहूटा तक तय करेंगे, जिसके लिए आपको 27 किलोमीटर का सफ़र और तय करना पड़ेगा। कहूटा शहर के अंदर फिर आपने बाईपास का इस्तेमाल करते हुए 1 किलोमीटर दूर जो है वो आज़ाद पतन मोड़ तक जाना है। आज़ाद पतन मोड़ से 2 रास्ते हो जाएंगे, एक रास्ता कोटली की तरफ चला जाएगा जबकि बाएं तरफ जाने वाला रास्ता जो है वो आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा और रास्ते में आप पंजाड़ के मुकाम पर पहुंचेंगे। पंजाड़ यहाँ से 14 किलोमीटर के फासले पर है। जी हाँ, ये वही पंजाड़ है जहाँ पर अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत रेस्ट हाउस मौजूद है और यहाँ ही से एक सड़क जो है पंजपीर की तरफ जाती है जो एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है। तो फिर पंजाड़ के बाद आप अपने अगली मंजिल जो है वो आज़ाद पतन पुल तक पहुँचेंगे। ये दरियाए जेहलम के ऊपर ये पुल वाक़ है जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को डिवाइड करता है। और फिर आप जब क्रॉस करेंगे इस ब्रिज को जो कि आज़ाद पतन का ब्रिज है तो आप फिर ज़िगज़ैग मोड़ देख रहे हैं सामने। इन ज़िगज़ैग मोड़ को अबूर करते हुए आप पलंदरी मोड़ की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ से 2 रास्ते हो जाएंगे, एक रावलाकोट की जानिब चला जाएगा जबकि दूसरा रास्ता जो है वो आपको पलंदरी शहर की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ से पलंदरी शहर का जो फासला है वो तकरीबन 18 किलोमीटर के करीब है। 18 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद आप पलंदरी शहर के अंदर पहुँच जाएंगे। रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, आराम से आप अपना सफ़र हर तरह की गाड़ी में यहाँ पर कर सकते हैं। पंजाड़ से होते हुए फिर आप जब पहुँचे आज़ाद पतन और आज़ाद पतन से फिर आप पलंदरी पहुँचे तो उसके बाद आपकी अगली मंजिल तराड़खल शहर है जो यहाँ से तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर है। और तराड़खल शहर से बहुत से रास्ते डिफरेंट डायरेक्शंस में निकलते हैं तो यहाँ से आपने हजीरा रोड को फॉलो करना है और हजीरा रोड को फॉलो करते हुए आपने 2 सीमेंटेड पुल जो हैं वो क्रॉस करेंगे। आप पहला पुल छोड़ेंगे और जब आप दूसरे पुल के करीब पहुँचेंगे तो फिर आपकी मंजिल जो है वो वाटरफॉल आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी, जैसा कि आपको सामने नज़र भी आ रहा है ब्रिज। इस ब्रिज को अबूर करते ही तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद एक सड़क जो है वो आपके दाएं तरफ नीचे की जानिब उतरेगी। इसी सड़क पर आपने जो है वो स्टीप कट काटना है और ये काफ़ी ज़्यादा उतराई है यहाँ से, तो ये आपकी मंजिल आप तिलनी वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। शुक्रिया।